पता नहीं चलता है वैसे। हाँ, so basically you have not given any external stimulus. Okay, कोई स्टिमुलस नहीं दी है और अपने आप ये चलता ही रहता है. दैट मीन्स एनी यूरेनियम सॉल्ट, जहाँ पे भी ये यूरेनियम सॉल्ट्स मिलते हैं लाइक इन द अर्थ क्रस्ट, दैट एरिया इज फुल्ली रेडियो एक्टिव. ओके, मतलब वहां पे बहुत एमिशंस होते होंगे एंड दैट कैन अफेक्ट एनी ह्यूमन बीइंग. ओके, so spontaneous emission matlab without any external stimulus it is going to emit some radiation. See, normally what you do now, I'll talk about nuclear fission. abhi wo hai nahi apne ko. Nuclear fission में क्या होता है, you are bombarding that nucleus with something, like तुमने uranium के ऊपर कुछ तो bombard किया, मतलब something you are putting on it. Like normally what about any reaction, आप दो चीज को mix करते हो and you make a product. Okay, you're trying to give an external stimulus like a catalyst use karte ho, heat use karte ho, but radioactive decay, it is nothing on that. Okay, radioactive decay is only spontaneous emission, apne aap chalta rehta hai. Yes, I can say that it can be a random one, because randomly it can generate more emission, it can generate less emission, कुछ भी हो सकता है. कभी कभी वो पता है अल्फा बनाता है, खाली अल्फा एमिशन कर रहा है, कभी कभी उसे बीटा एमिशन कर रहा है. सो यू डोंट इवन नो कि अभी हाउ डू यू कम टू नो कि अल्फा रे है और बीटा है, वो हमको अभी देखना मैम, है. तो अल्फा बीटा और गामा में से ज्यादा एनर्जी कौन देता है? सबसे गामा। हाईएस्ट गामा इज द हाईएस्ट बिकॉज गामा इज ओ मोर हाँ, गामा पेनिट्रेटिंग. रेडिएशन। गामा इज मोर पेनिट्रेटिंग, so it is of मतलब high अनचार्ज energy. ना, बेसिकली Yes, अनचार्ज ना। the uncharged one, yes. Now the मैम, isotopes. Yes, वो गामा रेस भी बेक्यूरेल क्यूरी ने ही ये किया था yes, ना, yes, yes, yes. डिस्कवर। So normally he understood that these are the rays which are coming out of these salts. Okay, afterwards there were a lot of experiments happened and then they found out कि yes ये positively है negatively है. We also have that, मतलब कैसे किया वो हमारे syllabus में है, so we'll हम तो study it. अल्फा बीटा और गामा उसी वक्त इंट्रोड्यूस किया था, नया नया। Yes, ओ, अभी देखते हैं ना, let's study about the emission, then you will understand that how could they differentiate. Okay. Now, isotopes, first of all, who are going to generate this? So we have already studied the substances which disintegrate by the spontaneous emission, they are called radioactive substance. Example, now if you see, अपना कौन सा है, period number 7 and 6, lanthanide and actinide series. So basically the actinide series, if you remember, उसमें यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, यस थोरियम, एक्टिनियम है. Okay, the isotopes of nearly all the elements of atomic number higher than 82. Okay, so the atomic number 81 tak, they are not radioactive elements. 82 मतलब वही period number 6 and 7. Okay, the isotopes of those, they are radioactive because in that, in their nucleus the number of neutrons is much more than the number of protons. So basically for any radioactivity the number of neutrons should be more. Okay, so these are called natural radioactive substance क्योंकि कुछ ज्यादा ही है number of neutrons. Now any physical change, अभी देखो this is very important. हाँ, ये जो tilt वाला दिख रहा है italic में, this is very important, इसमें से give reason आया है section A में. Now, any physical change such as change in pressure and temperature or any chemical change like excessive heating, freezing, then action of strong electric and magnetic field, chemical treatment, oxidation, it does not change the nature of radiation emitted by the substance and its rate of decay. So basically कहीं पे भी होने दो, बहुत बारिश हो रही है, कुछ भी, मतलब any random condition, if you say physical change as well as chemical change, okay, they are not going to affect the nature of radiation. ऐसा नहीं होगा कि अल्फा बंद हो जाएगा और बीटा ही होगा और बीटा बंद हो जाएगा तो अल्फा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so it is not affecting any nature of radiation, also it is not going to affect the rate of decay. So this clearly shows that the phenomenon of radioactivity cannot be due to the orbital electrons. Basically वो जो याद है हम पढ़ते हैं loss of electrons, acceptance of electrons, अपना ये जो electrovalent bond. So basically the radioactivity is not because of electrons which could be easily affected by such changes. So therefore
तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट रेडियो एक्टिविटी इज अ वर्क ऑफ न्यूक्लियस. तो रेडियो एक्टिविटी इज देयरफॉर द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. So therefore I can say radioactivity is a nuclear phenomenon. Nuclear मतलब क्या? Basically it is a property of a nucleus and it is the process of spontaneous emission. Spontaneous मतलब without any external stimulus, random है ये, of alpha, beta or gamma radiations from the nucleus of atoms during their decay. So these radiations are coming from where? Nucleus से आता है, not because of the orbital electrons. जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उसके वजह से एमिशंस नहीं हो रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, प्लीज डू स्टडी. यहाँ से गिव रीजंस आते हैं. सो हाउ कैन यू से दैट रेडियो एक्टिविटी. तो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? दैट रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन. हाउ कम यू कैन से दैट? मतलब ये स्टेटमेंट को आपको बोलने को पूछते हैं, मतलब गिव रीजन. ओके, सो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन. नाउ from a radioactive substance containing a very large number of atoms, there is no way to know when or which nucleus of an atom will decay at any moment. Okay, so radioactive decay is a random phenomenon. Now I can say it is a random. So basically ये word wrong है. When or which nucleus नहीं. I want to say when, मतलब कौन सा न्यूट्रॉन अभी टूटने वाला है, I don't know. सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ना यूरानियम के केस में, यूरानियम इज व्हाट हैविंग 235 92, मतलब 143 न्यूट्रॉन्स. ना 143 उसमें से कौन सा न्यूट्रॉन अभी टूटने वाला है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट. ओके, so therefore I can say radioactive decay is also a random phenomena. So there is no law by which the disintegration of individual nucleus can be known. Okay, क्या टूट रहा है मुझे नहीं पता. फाइन, एनी डाउट? मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. ओके, द रेडिएशंस आर कमिंग आउट. नाउ रदरफोर्ड, ही इज द वन हु एक्चुअली डिफरेंशिएटेड द अल्फा बीटा गामा. उसने एक्चुअली मेन किया था. Now Rutherford experimentally studied the nature of radiation emitted by the radioactive substance. Can anyone tell me what else he has done? हमने 9th में पढ़ा है. तो रेस का वो नहीं नहीं, केमिस्ट्री. न्यूक्लियस. हाँ, न्यूक्लियस. अल्फा रेज उसने Nucleus is the ये center. किया था ना उसने. हाँ, क्या बोल nucleus रहे is in हैं? the वन एट center. अ टाइम क्या उसने- आयुष? हाँ बोलो. उसने अल्फा रेज पास किए थे ना. यस यस, और गोल्ड फॉइल से. गोल्ड फॉइल में. यस. हाँ. ओके, Nucleus in the center ना. यस. तो उसको मतलब बीच में याद है, इसके पहले जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन Watermelon को, theory. हाँ, वाटरमेलन हाँ. थ्योरी उसने बोला था, या उसने ये बोला था कि इट्स लाइक अ पाई, और जो बीच बीच में आपको दिखेंगे किशमिश और व्हाटएवर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स. उसके लिए उसको वो नोबेल कुक था. प्राइज भी मिला था. मेरे हिसाब से वो कुक था. कुक. हाँ, तो बेसिकली उसको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. ओके, बट दैट थियोरी हु एक्चुअली देन डिस्कवर्ड, बेसिकली रदरफोर्ड ने फिर उस ये एक्सपेरिमेंट करके उसको पता चला कि यस, नो, न्यूक्लियस इज इन द मिडल ऑफ एन एटम, क्योंकि देयर वर तो सम उसको रेज मिला व्हिच कि इज, नहीं? उसको मिला कि नहीं? नहीं नहीं यार, क्योंकि नॉट ओनली रदरफोर्ड का भी बहुत सारे रॉन्ग हुए थे. फिर बोस थियोरी आया. Okay, हाँ, बोस. okay, these all thing you are going to study in class 11th. Yes, यार सब 11th में ही हम क्या चल रहे हैं? बहुत हाँ सारा हो गया 11th. 11th. हाँ 11th में काफी सारा डिटेल में आएगा, तो तुमको ये रदरफोर्ड, बोस थ्योरी, फिर सबका मतलब एवरी डाल्टन से चालू करेंगे वो लोग, एंड एवरी थ्योरी दे आर गोइंग टू टेल यू दैट इट इज रॉन्ग. ओके, हर एक थ्योरी को वो रॉन्ग सच करके क्या है? आगे पढ़ोगे. रॉन्ग भी तो बोल रहे क्यों है? because you want to see, if you want to understand कि ये कहाँ से वो आया उनकी है, you मर्जी है. need to know the history ना. तो that's why तुमको स्टार्ट करेंगे डाल्टन से. डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, बट बाद में निकाला कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वो इलेक्ट्रॉन. मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी हो रही है ना? So that's why I'm telling you why एटॉमिक थ्योरी, सॉरी, एटॉमिक why थ्योरी. are we studying this, because we need to understand कि नहीं, because this is a big sacrifice. उन्होंने काफी काम किया है रे उन्होंने ये सब में. ओके, तो इट्स जस्ट लाइक वे ऑफ एक्नॉलेजिंग कि उनके वजह से हमारा लाइफ आज के डेट में इजी हुआ. सी, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रिमेम्बर वन थिंग, वी आर एबल टू डू
वी आर गेटिंग लाइट. ओके, सी यू, ठीक है, हम इंडिया में है, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ हाइड्रो पावर. ओके, बट व्हाट अबाउट अमेरिका, जापान एंड एवरीथिंग? वहां हाँ पर सब तो वो न्यूक्लियर, वो यस एमिशन से होता है यस, ना बॉम्बार्डिंग का. yes, so nuclear fission is happening, so there are nuclear reactors there. Okay, so और फिर basically वो you अफेक्ट should होता know है from where are you कैंसर के getting आया your, होगा. yes, so you should know from where are you getting your electricity, कहाँ से आपको ये सब चीज आता है. that's why they are trying to teach you all this. okay, इसके बारे में काफी हम पढ़ेंगे because we need to know that it is harmful for us. तो ओके, तो वो हम पढ़ने वाले. सो रदरफोर्ड experimentally studied the nature of radiation emitted by the radioactive substances. Now he found that on subjecting the radiations given out by the radioactive substance in a magnetic field, now ये भी एग्जाम में आता है. okay, they separate out into 3 distinct constituents in which magnetic field is normal to the plane of paper. okay, now यहाँ पे है क्या? yes, okay, ओके ठीक है. पहले ये इनवर्ड्स है. इनवर्ड्स का मतलब क्या है? मतलब ऐसे सोचो कि मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रहा है. ओके, सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज गोइंग वर्टिकली, मतलब ऐसा ऊपर जा रहा है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अंदर जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जा इनवर्ड. रहा है. यस, so it's a perpendicular. okay, now what they are saying that those which turn to left, जो लेफ्ट साइड में जाता है, they are alpha. okay, those which turn to right, जो right होता है, they are negatively charged, they are called beta. okay, and those beta particles, हाँ, if you notice alpha particles से so थोड़ा सा ज्यादा ही deviation होता है. so beta particles are deviated more than the alpha particles, थोड़ा ज्यादा ही झुका हुआ है, दिख रहा है. and there are some rays which are going undeviated and they are uncharged. okay, मतलब must be, हाँ, ये सब उन्होंने वर्ड यूज किया, बाद में इनको प्रूव किया गया है. must be uncharged and they are called gamma radiations. तो उसने तीन देखे. ओके ओके, इनवर्ड्स के लिए यू रिमेम्बर व्हेन यू आर पुटिंग रेज इनसाइड यू हैव टू डू क्रॉस, ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा. एंड यदि आपको आउटसाइड, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, तो कैसे करते? इफ एनीवन हैज एनी आइडिया कैसे करते? मतलब सोचो बाहर की तरफ, मतलब सोचो ये जो तुम्हारा लैपटॉप है या तुम्हारा फोन है, द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड टुवर्ड्स यू, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डू यू नो दैट? किसी को आइडिया है? ओके, सो बेसिकली इट इज अ डॉट. तो डॉट नहीं करके मैं छोटा छोटा आपको सर्कल दिखा रही हूँ. तो आपने ये ऐसे सर्कल बनाया ना, ये क्रॉस की जगह पे आपने सर्कल बनाया ऐसे. ओके, मतलब डॉट्स बनाया, तो समझ जाने का दैट इट इज कमिंग आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. ऐसे क्रॉस बनाया, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. समझा आपको अभी? अच्छा, मतलब वो एक्सन हो मैम. यस, ऐसे टिक टैक तो याद रख लेंगे हम. ओके, सो डॉट मीन्स आउटवर्ड, क्रॉस मीन्स एंड इनवर्ड्स. ओके, क्या बोला? एनीथिंग? नाउ गामा रेडिएशंस which is going undeviated, ये हम पढ़ चुके हैं. if you remember, gamma radiations are electromagnetic waves similar to light waves and they are not affected by the magnetic field. हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी स्पेक्ट्रम चैप्टर में. सिमिलरली, क्या मैम, एक बार फिर से रिपीट करो. गामा रेज, गामा, ultraviolet, yes. So gamma radiations, so gamma radiation is represented as this. Okay, so gamma radiations are the electromagnetic rays similar to light waves, they are not affected by magnetic field. ये भी हमने पढ़ा है. Now let's see what happens if the radiations are given out or they are subjected to an electric field. Now, if the radiations given out by radioactive substance are subjected to electric field in a direction perpendicular to their path, okay, so if you see electric field ऐसा है, मतलब it is, just one second,
नाम इधर एक्स और वो है नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या? नहीं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफ यू नोटिस देयर इज अ प्लस साइन, मतलब ये यहाँ पे दिस इज माय पॉजिटिव साइड एंड दिस इज माय नेगेटिव साइड. तो ये सिंपल है. दोज विच टर्न टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो रेज झुकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज, because alpha is getting attracted to negative. So those which turn towards the negative plates are called positively charged alpha. Those which turn towards the positive plate, they are called negatively charged beta. नेगेटिवली And चार्ज. in this case also same thing happens. The gamma radiations are going undeviated. Again यहाँ पे भी यही दिख रहा है, the beta particles are deviated more than the alpha particles. ठीक है? ऐसा ऐसा क्यों? है तो है. There is a reason for it, but आपको नहीं है. क्या है? It's तुम okay. बोलना बाद में. Because of the energy. आप मत बोलना, हम ये वापस से 11th में. High energy है ना. We have this chapter, radioactivity का chapter in 12th. Okay. सर बच गए. It's the 12th. Okay. Now let's understand the properties of alpha particle. Now normally we study, ठीक है, we'll study this. So alpha particle में क्या होता है? What is an alpha particle? So alpha particle is basically Positive. a helium atom. No, wait. आस्ते रुको. So alpha particle, it is basically, it is same as doubly ionized helium atom. So basically a helium nucleus को आप alpha particle बोल सकते हो. Why? Because an alpha particle is consisting of 2 proton and 2 neutrons. And helium में भी क्या है? 2 protons and 2 neutrons. 2 proton 2 neutron. तो ये वाला जो है ना helium का जो A and Z है, okay, it is similar to that only. So you can represent the alpha particle by representing the model of helium atom. दिख रहा है आपको? Yes. Okay, but alpha particle doesn't have electrons. Okay, समझे क्या? Doubly ionized helium atom का मतलब क्या होता है? Doubly ionized helium atom मतलब when a helium atom loses its both orbital electrons. सोचो दोनों इलेक्ट्रॉन जब होता नहीं है उसको, तब वो क्या बन जाता है? Doubly ionized helium atom और alpha particle. दिख रहा है आपको? समझा आप क्या? Fine. Yes, ma'am. So first one is the helium atom and the second one is the only helium nucleus, or you can say alpha particle. Remember, alpha particle does not have any electrons. Okay. Now if the alpha particle, so जो इस alpha particle में if you get one electron, तो वो क्या बन जाएगा? Singly ionized helium atom. और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल हीलियम एटम बन जाएगा. Normal helium. Yes. Okay. The mass of the alpha particle is 4 times the mass of a proton. Okay. प्रोटॉन से 4 टाइम बड़ा है. So प्रोटॉन का कितना है रे? 1.67 into 10 raised to minus 27 426 था ना kg. शायद से. Minus 27 kg. तो 4 kg times into 4. हाँ, तो 4 times the mass of the proton. Okay. And charge क्या है उसका? It is twice the charge of proton. 2e. Okay. Specific charge. Now this thing we are going to study in 11th. J.J. Thomson ने ये introduce किया था. Q upon M. Okay. This is a very important. इसके वजह से हमको बहुत कुछ पता चलता है. इसके वजह से हमें charge of electron पता चलता है. No. See, basically, what are you studying in class 10th and 9th? What did you study? You just study the ऊपर का level. Now, in-depth study, ये कहाँ से आया? How did you get this charge? किसने ये बैठ के discover किया? What was the formula they have used? तो this is the formula. Q मजा आएगा, मजा. हाँ, तो ये सब आपको in-depth study आपको 11th and 12th में मिलेगा, which you don't need to know now. Okay? So जैसे अभी तुमको मैंने बोला ना कि बीटा पार्टिकल झुका हुआ आता है. इट इज मोर मतलब हाई एनर्जी है उसमें, ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो थोड़ा झुक जाता है. ओके. अभी स्पीड, वील टॉक अबाउट स्पीड, तभी तुमको समझेगा कि इसलिए झुकता है वो. स्पीड भी है. Now speed of alpha particle is 10 raised to 7 meter per second. What is the speed of light rays? What is 3 speed into of 10 light? raised to 10 10 raised to 8. Sorry, हाँ, 3 into तो 10 3 raised. into 10 raised to 8.
तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल? इट इज लेस, दिख रहा है ना, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. So it is different for alpha particle emitted from different radioactive substance. मतलब ऐसा नहीं, it's a approximately radioactive, मतलब alpha particle का speed order of 10⁷, मतलब अलग अलग सब्सटेंस है, लाइक यूरेनियम का कुछ और रहेगा, पोलोनियम का कुछ और रहेगा, थोरियम का कुछ और रहेगा. ओके, तो बेस्ड ऑन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, बट इट विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁷ ओनली. मतलब हो सकता है 3 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, ऐसा हो सकता है. ओके, फर्दर ऑल the alpha particles emitted from the nucleus of the radioactives do not have the same energy or speed. मतलब दोनों सबका सेम नहीं होता है. ओके, ऑल द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब हर एक अल्फा पार्टिकल का सेम स्पीड नहीं होगा, बट दे हैव अ एनर्जी बैंड, मतलब बेसिकली एक रेंज रहेगा. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि 10⁻⁷ से इंटू 10⁻⁷ तक है, ऐसे भी हो सकता है. ओके, तो इसमें से गिव रीजंस आते हैं, बाद में बताती हूँ मैं कहाँ से क्या आएगा. ओके, अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयोनाइजेस द गैस through which it passes. Okay, so the ionizing power of alpha particle is roughly 100 times that of beta particles and roughly 10⁻⁴ times that of gamma radiations. मतलब बेसिकली क्या करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजिंग? यहाँ पे देखो, पकड़ के रखता ना शायद नहीं से. नहीं, कोलिजन्स करता है. नो, it is knocking out the electron from the atom which now becomes a positive ion. Basically अच्छा, सोचो, मतलब वो wait, I'll tell you. So कुछ whenever करता it है is, ना. no, listen, whenever it is passing through a gas, what happens? किसी भी गैस के थ्रू अल्फा पार्टिकल विल पास, क्या होगा? इट विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनको ना निकाल के फेंक देंगे. तो बेसिकली इट इज गोइंग टू मेक यू अ पॉजिटिव आयन. जैसे सोडियम एटम, अरे सोडियम इज नॉट अ गैस. ओके, टॉक अबाउट एनी गैस, लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, या एनी गैस, कार्बन, एनी गैस, नॉट कार्बन इज नॉट अ गैस, कोई गैस बोलो यार, नाइट्रोजन बोलो. हाँ, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन, हाँ क्लोरीन, क्लोरीन. हाँ, सो बेसिकली अमोनिया. वो क्या करता है, वो ना, मतलब सोचो क्लोरीन में से, क्लोरीन तो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन में से भी इलेक्ट्रॉन को भगा सकता है. सोचो ये भी. सो दिस ऑल्सो यू गोइंग टू लर्न इन 11th. क्लोरीन को तुम पॉजिटिव क्लोरीन भी पढ़ोगे, मतलब क्लोरीन यू विल बी स्टडीइंग एज अ पॉजिटिव आयन, दैट ऑल्सो यू गोइंग टू स्टडी इन 11th. सो बेसिकली वो क्या करता है, एनी गैस इट आयोनाइजेस. आयोनाइजेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को किक आउट करेगा एंड इट विल मेक इट एज अ पॉजिटिव आयन. ओके, so an energetic particle when suffers collision with the atom of a gas, it knocks out the electron from the atom which now becomes a positive ion. This process is called ionization. But so इसका मैं तो मतलब क्या है, बोलता हूँ, हाँ, कंटिन्यू करो. alpha particle has most ionizing power than beta and gamma. Okay, ये सब कहाँ मिलेगा तुमको? Where are you going to get this? यहाँ पे, यहाँ एक टेबल है. Now this is the table from where you are going to get this. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल में मैक्सिमम है, बीटा इज लेस देन अल्फा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन में मिनिमम है. ओके, पेनिट्रेटिंग पावर, यस. पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कितना घुस सकता है, मतलब इट इज वेरी स्मॉल, 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर, बाद में गायब हो जाएगा वो अल्फा रेडिएशन. दिस इज वेरी लार्ज. एंड गामा इज, मतलब बोलते हैं ना, तुम्हारे शरीर के आर पार हो जाए, मतलब इट कैन पास थ्रू आयन ऑल्सो, बट उसका भी एक रेंज है. ओके, एंड इट इज वेरी लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर. तो एग्जाम में ना ये आता है ज्यादा कि who has the most ionizing power, who has minimum ionizing power, who has most penetrating power, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है. तो ये आयोनाइजिंग 8th और 9th थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है. एंड बायोलॉजिकल डैमेज, क्या बोल रहे हो? इसलिए लेड बॉक्स में रखते हैं क्या? यस, मतलब ज्यादा पेनिट्रेट यस, यस, राइट बोला. तो एग्जाम में ना 8, 9 और 11 ये बहुत बार आता है, ठीक है. बाकी स्पीड यू कैन स्टडी. स्पीड अल्फा का कितना है, 10⁻⁷.
बीटा का कितना है, थोड़ा ज्यादा है, 2.7 इंटू 10⁸8, मतलब 90% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। एंड गामा रेडिएशन तो तुमको पता है, इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, 3 इंटू 10⁸8। ओके, अल्फा को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते, बीटा को नेगेटिव, एंड गामा को क्या बोलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक। तो गामा रेडिएशन हैज मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी नेचर, स्पीड, इफेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि लेस डिफ्लेक्टेड, मोर डिफ्लेक्टेड, ओके, अनअफेक्टेड, बाकी कुछ नहीं आता। ये वेवलेंथ, चार्ज, ये सब कुछ पूछते नहीं। बट नाउ इफ योर पोर्शन इज रिड्यूस्ड, दे मे आस्क यू। सब पूछेंगे, कुछ भी हो सकता पूछेंगे। है, हो सकता है। यस, बोलो। ये एक तो बीटा और गैमा एक साथ निकलता है, नहीं तो अल्फा और गैमा एक साथ निकलता है, हाँ यस राइट। यस, मतलब क्या होता तो है, वो कभी अल्फा निकलेगा और गामा निकलेगा, कभी बीटा निकलेगा और कभी गामा निकलेगा। मतलब बेसिकली अल्फा और गामा साथ में निकलता है, बीटा और गामा साथ में निकलता है। कभी भी गामा और बीटा, सॉरी क्या बोल रही, अल्फा और बीटा साथ में नहीं निकलता। ठीक है, यस हम मैम। एक doubt पूछूं? बोलो। क्या अल्फा और बीटा पार्टिकल में वेवलेंथ डैश डैश क्यों है नहीं क्या? नहीं, उसका वेवलेंथ नहीं मेजर कर पाते हैं, इसलिए नहीं है, मेजर नहीं कर मैम पाते। यस, फिर अगर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया कि यूरेनियम में से अल्फा और गैमा पार्टिकल्स एक साथ निकालो, कंप्लीट द इक्वेशन, ऐसा नहीं तो आता हम है। लोग इक्वेशन तो बोल पहले। एक मिनट, कौन सा रिएक्शन, हाँ बोलो, ऐसा कुछ है क्या रिएक्शंस यहाँ पे? हाँ मैम, है ना, यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकालो, ऐसे रिएक्शंस है। तो दोज आर लाइक, कैसा है मालूम है, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए देखो, दिखाती हूँ मैं। 11th ये मत वाला ना, बोलना। ये देखो, एक्स से हाँ मैम। बीटा, नहीं कहाँ पे, एक कहाँ पे निकल रहा है, देखो ना, खाली बीटा निकल रहा है, एक अकेला निकलता है। ओके मैम। तुम क्या है, ये लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिएक्शन में बात कर रहे हो क्या? नहीं, हाँ, नहीं मैम, अल्फा और, आपने बोला ना दोनों एक साथ निकलते हैं, तो वो एक साथ में इक्वेशन में एक साथ रिप्रेजेंट करने को बोल सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो तुमको नहीं है वो सब, नहीं है। देखो यहाँ पे 11th देखो, मत बोलना मैम, नहीं 11th मत बोल। नहीं, आपको ऐसे रिएक्शंस वैसे नहीं है, मतलब वैसे रिएक्शंस नहीं, ये 11th में भी नहीं है। ओके, तो अल्फा आपको ऐसे दिखाएंगे कि अल्फा निकला है, गामा निकला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी पार्ट। ओके, अल्फा और गामा साथ में निकलता है, एंड बीटा और गामा साथ में निकलता है। कभी भी अल्फा और बीटा साथ में नहीं निकलता। तो अल्फा और गामा, So it will be an बीटा alpha और decay. See, listen, it will be an alpha decay or it will be a gamma beta decay. बीटा डी के। हाँ, ओके, गामा मतलब ये है, न्यूमेरिकल्स बस। हाँ ये न्यूमेरिकल्स है, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए दिया हुआ है। ओके मैम। ओके, तो ओके, सो हमने काफी कुछ पढ़ा आज। ओके बहुत ज्यादा। ओके, सो एक बार थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत इजी है, तो आई थिंक दिस यू कैन स्टडी ऑन योर ओन। ओके, तो इसमें क्या थोड़ा सा, ओके तो इसमें कुछ है नहीं कि, ओके थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बोला, हाँ, इट डिसिपेट्स इट्स एनर्जी इट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ मीडियम। मतलब बेसिकली इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना कम क्यों है, अल्फा क्यों ज्यादा देर तक पास नहीं कर सकता? बिकॉज वो क्या करता है, इतना सबको आयोनाइज करता रहता है, जाते जाते क्या हो जाता है, इट लूजेस इट्स एनर्जी, तो खत्म हो जाता है, and therefore the penetrating power is small. Therefore it can penetrate only 3 to 8 centimeter in air. It can be easily stopped by a thin card sheet or a thick paper. मतलब एक thick paper रख दिया तो उसके आगे जाएगा नहीं वो। Okay, so it is roughly 10⁻⁻² times that of beta particle, मतलब बीटा से कम है, and 10⁻⁻4 times of gamma radiation. गामा तो बोलो इधर से उधर चला जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, गामा इज वेरी डेंजरस। Okay, now how come you can call that they are positively charged? तो समझ जाने का, when they are deflected, so you can explain it through electric field. तुमने देखा ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ वो झुकता है, that means it's an alpha radiation. जैसे alpha particles और also going to affect photographic plate. ये तो बेकरेल ने, हेनरी बेकरेल ने ही पता कर दिया था ना, there were some emissions, so yes, this is going to be there. Then it is causing fluorescence. ये भी आपने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रम चैप्टर में,
that it is causing fluorescence